Hello everyone. So what we did, right, till the date, right, I will revise in 5-10 minutes maximum. ठीक है, right? Section 1 talks about what? The title of the act, Indian Partnership Act 1932, commencement 1st of October 1932. All section 74 except section 69 got applicable from 1st of October 1932. Section 69, which deals with limitations of unregistered firm, disabilities of the unregistered firm, or consequences of not registering the firm, right? That section 69 got applicable from 1st October 1933. It is applicable to whole of India except state of Jammu and Kashmir. Same for Contract Act, same for Sale of Goods Act. ठीक है, whole of India except state of Jammu and Kashmir. This law rules down like the provisions related to partnership. This is a special contract. It is a type of contract only, special contract. It has to be voluntary in the nature. It is a partnership is contractual in the nature, and therefore, as per section 3, all the provisions of Indian Contract Act are applicable to the Indian partnerships as well, if they are not inconsistent with the Indian Partnership Act. If some provisions are inconsistent with the Indian Partnership Act, then Indian Partnership Act will prevail. If Indian Partnership Act is silent, then we will refer to Indian Contract Act. That is section 3. Then section 4 talks about the definition, right? Partnership is a relation between the persons who have agreed to share the profits from a business, right? Carried on by all or any one of them acting for all. Individually, they are called as partners. Collectively, they are called as firm, and the name under which they carry on a business is called as firm name. Firm is a collection of the partners. Try to understand. Firm does not have separate legal status, right, than the partners. Firm just represent partners. So, right, firm is not a legal person. All relations need not be partnership, but all partnerships are relations. Okay. Then there were basically 5 essential features that we studied. Partnership is an association of 2 or more person. Then second, right, it is created out of agreement, right? Section 5 talks about that, created out of agreement and not status. Third element was partnership is to carry on a existing business, right? There has to be business. Third, fourth, sharing of the profits, right? Partnership is to share the profit. Sharing of the profit is essential. Sharing of the losses is not essential. Sharing of the profit is a prima facie evidence of the existence of partnership. Test 1. And right, the last fifth element of the partnership was existence of the mutual agency. Mutual agency means it is a capacity of a partner to bind others by his act and to get bound by their acts. That relation is a mutual agency, and this is the cardinal principle of partnership law or true test of the partnership, existence of the partnership, राइट? ये सब हमने किया था. देन हमने देखा था कि पार्टनर प्लेज ड्यूअल रोल ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. एंड राइट, व्हेनेवर वी सी द एग्जिस्टेंस, राइट, हम दो केसेस को स्टडी करते हैं, केडी कामत एंड कंपनी, एंड दूसरा है राइट कॉक्स वर्सेस हिकमैन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Both lays down some fundamental principles of the partnership. Then we studied partnership is just an extension of law of agency. Any right, when a agency is created, it is created without any consideration, and therefore even partnership is created without any consideration. That is an exception, right? Then again, then we understood the partnership deed. Try to understand, there will be very less partnership जहाँ पे deed नहीं होगी. भले लॉ बोलता है कि deed, right, agreement can be oral, but try to understand, जो बिजनेस कर रहे they are laymen, they are rational people, so they understood the importance of the deed. तो बहुत कम जगह पे रहेगा जहाँ पे deed नहीं होगी. Try to understand. It is always advisable to have a partnership deed, and therefore there are very rare businesses जहाँ पे आपको deed नहीं मिलेगी. Try to understand. Then the document which contains mutual rights and mutual obligations of the partners is called as partnership deed. Then
उसके बाद था any provision of the partnership deed cannot defeat the intention of the partnership law. Try to understand. Means any provision of the deed cannot contravene the provisions of the Indian Partnership Act. Deed can be amended at any point of time with the consent of all the partners. Thereafter, we understood who can enter into partnership and who cannot enter into partnership. Basically, as per Indian Contract Act, Section 11 talks about the like competent persons who can enter into contract. As partnership itself is a contract, right? We should understand that Section 11 is very important of Indian Contract Act 1872. Under that, three persons are capable of entering into contract. A person who has attained the age of 18, because as per Indian Majority Act 1875 में आया था, right? According to that act, age is 18. So major can enter into contract and therefore he can be a partner, he can form a partnership. इसका मतलब minor cannot form a partnership. However, existing partnership में minor can be admitted to his benefit. वो minor partner में हम सब चीजें समझ लेंगे. उसके बाद, right? दूसरा था a person of unsound mind, right? Unsound mind is a person who cannot take rational decisions for himself. Sound mind person can enter into contract, right? And therefore unsound mind person cannot enter into contract. Therefore, right, they cannot be a partner or they cannot form the partnership. Then, right, persons who have been disqualified from entering into contract, right, cannot enter into partnership, like alien enemy cannot enter into contract, or existing insolvent person hai, he cannot enter into contract. Try to understand. So like alien enemy यहाँ पे example दिया गया है कि he we cannot enter into partnership with the alien enemy or he cannot be our partner. And एक example है a body corporate like joint example LLP देखा जाए या आप company देखते हो. In that case, that company or LLP is a partner and not the persons who have formed that company or LLP. Right? Because LLP and company has a separate legal entity than its member. So, ये contract act में लिखा है. And as per Indian Partnership Act, Section 5 says, partnership is arises out of contract and not their status. And therefore, two kinds of people or two kinds of businesses पार्टनरशिप नहीं हो सकते या वो लोग पार्टनर्स नहीं हो सकते. उसमें आता है HUF and दूसरा आता है Burmese Buddhist husband and wife carrying on a business as such cannot become partner. Then म्यूचुअल एजेंसी की वजह से सेक्शन 4 में जो म्यूचुअल एजेंसी लिखे है, राइट, उसके वजह से ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, ये लोग पार्टनर्स नहीं होते. कौन? ए पर्सन हु इज शेयरिंग योर प्रॉफिट्स बट ही इज नॉट योर म्यूचुअल एजेंट. सच पर्सन इवन दो ही शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट पार्टनर. उसमें चार लोग आ गए. एक आ गया, राइट, द लेंडर हु इज गेटिंग इंटरेस्ट बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट. सेकंड, a manager or employee who is entitled to remuneration, right, as a, right, on the basis of your profit. Third, right, the family member of the deceased partner who are getting annuity, right, from your profits. And fourth, seller of goodwill, right, who is getting his consideration for goodwill, right, from our profits. Even though they are sharing your profit, but the real relation between them, right, and the firm or partners of the firm is not mutual agency and therefore they are not partners. उसके बाद joint owners, right, section 6 में स्पेसिफिकली लिखा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये एग्जांपल, ये चार एग्जांपल्स और जॉइंट ओनर का. जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, right, sharing gross returns out of that property does not become partners. Reason, there is no any business, then they are not mutual agent of each other. And मैंने कल एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल यहाँ पे दिख भी रहा है कि पार्टनरशिप में ए पार्टनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर इन द बिजनेस, शेयर इन द फर्म. देयर आर टू शेयर्स ऑफ ए पार्टनर. एक शेयर इन द प्रॉफिट होता है एंड दूसरा होता है शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप. ऐसे दो शेयर्स रहते एनी पार्टनर के. क्या? शेयर इन द प्रॉफिट एंड दूसरा रहता है शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ये दोनों शेयर्स पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर टू अदर पर्सन or can sell to other person without the consent of other partners.
अगर वो ऐसे करता है, then other partners have a right to seek dissolution of the partnership. Try to understand, right? So however, in case of partner joint ownership, co-owner can sell his share without the consent of other co-owner. Try to understand. And therefore their relation is not a mutual agency, they are not the partner. उसके बाद राइट, यहाँ तक कल हमने किया था, देन वी स्टडीड, ये मेरा थोड़ा पार्ट बाकी है, मैं ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट में हमने देखा कि वेदर ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज पार्टनरशिप और नॉट, और आर दे पार्टनर्स और नॉट। अगर हमें ये चेक करना है, वी शुड first check the agreement between them. Means I am talking about the section 4 of the act. section 4 में के मुताबिक अगर उसका specific agreement है, and that agreement is to share the profits of a business carried on by them or any one of them acting for all, अगर ये है तो it is a partnership, otherwise it is not a partnership. ये कब? when there is a specific agreement. But if agreement is not a specific, और agreement है but that does not talk about the existence of the partnership, और एग्रीमेंट ही नहीं है, ऐसे केसेस में वी हैव टू चेक द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स और रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो रियल रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? बाय कलेक्टिंग ऑल द फैक्ट्स एंड वी विल कंसीडर क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द फैक्ट्स। समझ में आ रहा है? वो जब हम करेंगे तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे? वी विल गिव प्रायोरिटी टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आई विल गिव प्रायोरिटी टू like economic reality over legal reality. Try to understand. So इसमें दो केसेस मिल सकते हैं, एक कि जो एग्रीमेंट है या पार्टनर्स बोल रहे हैं कि हम पार्टनर है बट एक्चुअली रियल रिलेशन इज नॉट ऑफ ए पार्टनर, या पार्टनर बोल सकते हैं कि हम पार्टनर नहीं है बट रियल रिलेशन इज पार्टनर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो राइट, वी हैव टू गिव वेटेज टू रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज फ्रॉम द collective facts, all relevant facts taken together, ठीक है। so that was the section 6 and उसके लिए हम कौन सी केस स्टडी यूज करते हैं? कॉक्स वर्सेस हिकमैन, राइट। देन आगे नाउ यहाँ पे कोई कंपैरिजन है वो मैं इस चैप्टर के सबसे एंड में ले लूंगा। मेनी ऑफ देम यू आर लर्न इन योर 12th एज वेल, बट हमें वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, वो मेरा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। बिफोर दैट I will move towards types of partnership. Try to understand. Basically, right? Basically, ये जो चार्ट है वो जाने दो, मैं क्या आपको समझाता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। Types of partnership. Types of partnership. बेसिकली बोल रहा हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आपके नोट्स में 4 पार्टनरशिप है बट बेसिकली देयर आर 3 पार्टनरशिप्स। ध्यान देना। एक, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड तीसरा है पार्टनरशिप एट विल। आई डोंट नो वेदर इट वाज इन योर 12th और नो, उसी में ये था या नहीं था, आई डोंट नो, राइट। था क्या रे आपके उसी में? अगर है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो, राइट। जस्ट मुझे पता करना है आपके 12th के उसी में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप थे क्या? अच्छा, श्रावणी मैडम बोल रही नहीं, बाकी बोल रहे यस। अच्छा ठीक है, श्रावणी मैडम ने इसका मतलब पढ़ा नहीं होगा, गुड। तो मैक्सिमम लोग यस बोल रहे हैं, रियली गुड, ध्यान देना, राइट। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप। वन इज पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड तीसरा होता है पार्टनरशिप एट विल। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड? ट्राई टू अंडरस्टैंड।
पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड इज ए पार्टनरशिप विच इज कैरिड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जब पार्टनरशिप बनाई गई थी, व्हेन पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड, इट वाज फॉर्म्ड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। लाइक 5 इयर्स के लिए पार्टनरशिप है, 7 इयर्स के लिए पार्टनरशिप है, 10 इयर्स के लिए पार्टनरशिप है, 3 इयर्स के लिए पार्टनरशिप है। सो जिसमें ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज स्पेसिफाइड और इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वैसे है, एक फिक्स पीरियड है, राइट, that partnership is called as partnership for fixed period of time. एग्जाम्पल, आज हम लोगों ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट की फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। सो आज है आपका, आई थिंक आज 22 अप्रैल है 2020, और हम ये पार्टनरशिप राइट 21 अप्रैल 2025 तक करने वाले हैं। सो दिस इज फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। दिस इज fixed period partnership for a fixed period. On this date, try to understand, on this date partnership automatically gets dissolved. जब पीरियड खत्म होता है, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। हाँ, अगर उस दिन पे हमें लगता है कि नहीं, वी वांट टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप, यस वी कैन कंटिन्यू दैट, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ नथिंग इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, और इस दिन पे पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। हाउएवर पार्टनर्स में कंटिन्यू द पार्टनरशिप, बट जब पार्टनरशिप पीरियड खत्म होने के बाद, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या बोला मैंने आपको, राइट, ध्यान देना, राइट। मैं बोलता हूं यहाँ पे इट इज फॉर फिक्स पीरियड, फॉर फिक्स पीरियड, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देन on completion of duration, on completion of time duration और time period, जितने भी मंथ्स के लिए, जितने भी साल के लिए आपने पार्टनरशिप की है, वो खत्म होने पे, वो पीरियड खत्म होने पे क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, राइट। पार्टनरशिप गेट्स डिसॉल्व्ड, द रिलेशन कम्स टू एन एंड, ठीक है। सो एक ऑप्शन है पार्टनरशिप डिसॉल्व करो, और सेकंड ऑप्शन है पार्टनर्स में कंटिन्यू द फर्म, कंटिन्यू द फर्म एज, राइट। एक ऑप्शन है अपने आप पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और सेकंड ऑप्शन है कि पार्टनर्स में कंटिन्यू टू, ऐसे लगता है यार 5 साल में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ ठीक है, वी कैन कंटिन्यू, समझ में आ रहा है। तो इन दैट केस पार्टनर्स में कंटिन्यू द फर्म एज पार्टनरशिप एट, राइट, एज पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, समझ में आ रहा है। सो ऑन ए कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड, इफ पार्टनर डिसाइड, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम डिसोल्यूशन लास्ट चैप्टर समझेंगे ना, राइट, उसमें मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन है, कैसे डिसोल्यूशन होता है, तो उसमें एक पॉइंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ सम सर्टेन इवेंट्स, कंटीजेंसीज, उसमें एक है कंप्लीशन ऑफ द टाइम। जिस पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी, वो पीरियड खत्म होने पे हमारी फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है, अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब अगर पार्टनर्स बोलते हैं कि नहीं हमें फर्म कंटिन्यू करनी है, वी डोंट वांट टू डिसॉल्व, दे कैन कंटिन्यू इट, बट दैट पार्टनरशिप विल कंटिन्यू एज पार्टनरशिप एट विल। क्या बोल के, पार्टनरशिप एट विल। क्या पार्टनरशिप एट विल है वो बाद में देखते हैं, समझ लेना। ऑन सिमिलर बेसिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सेकंड टाइप इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस पार्टनरशिप इज फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर, पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, हमें ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए हम 5 लोग आके बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। दिस पार्टनरशिप इज फॉर ए पर्टिकुलर बिजनेस, पर्टिकुलर एडवेंचर, पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसमें पीरियड फिक्स नहीं है, दैट ब्रिज कैन गेट कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, और मे बी 2 ईयर्स, मे बी 5 ईयर्स, और मे बी 10 ईयर्स। पीरियड नहीं है फिक्स। इसमें क्या फिक्स्ड है, इसमें प्रोजेक्ट फिक्स है, इसमें टास्क फिक्स है, इसमें एडवेंचर फिक्स है,
right? Particular, like what is difference between partnership for fixed period and particular partnership? फिक्स पीरियड में पीरियड फिक्स होता है, टास्क नहीं फिक्स होता है, राइट? पीरियड फिक्स होता है। एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या फिक्स होता है? टास्क फिक्स होता है, उसमें पीरियड नहीं फिक्स रहता, पीरियड में वेरी। समझ में आ रहा है? सच पार्टनरशिप विच हैव बीन like formed to carry on a particular task, specific task। हमें एग्जांपल, अभी सीजन आ रहा है मैंगोज का, तो हम साथ में आके मैंगोज परचेस करके सेल करते, उसके लिए हमने पार्टनरशिप की है। सो दैट वो सीजन खत्म होने पे हमारी पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, खाली इस पीरियड के लिए। समझ में आ रहा है? हम तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, या हमें ब्रीच करना है, या हमें कुछ एक पर्टिकुलर वेंचर हमने की है, उसके लिए हम कर रहे हैं। एक हमें एग्जांपल कोई काम मिला है, वो काम हम साथ में आके कंप्लीट करने वाले हैं, उससे जो भी प्रॉफिट आने वाले हम शेयर करने वाले हैं। वो काम खत्म होने पे हमारी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। सो राइट, ए पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड, राइट, एडवेंचर और टास्क और प्रोजेक्ट, आपको जो ठीक लगता है वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आई सिंपली मीन, राइट, अगर पीरियड फिक्स है तो वो बन गई पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। अगर आपका एडवेंचर फिक्स है, क्या काम करने वाले हो वो फिक्स है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं, तो उस पार्टनरशिप को बोला जाता है विच पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है? सो राइट, आगे सर, ये इसका आगे क्या होगा? देखो, ये जितने पीरियड के लिए टास्क चलेगा उतने दिन हमारी पार्टनरशिप चलेगी। एंड ऑन ए कंप्लीशन ऑफ द टास्क, राइट, जब वो टास्क कंप्लीट होगा उस दिन पे ऑटोमेटिकली फर्म विल गेट डिसॉल्व। बट इफ पार्टनर वांट्स टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप, वो टास्क खत्म हुआ, उनको लगता है अरे अच्छा चल रहा था, हमने अच्छे से टास्क कंप्लीट किया, नाउ वी शुड कंटिन्यू, चलो हम कुछ अलग टास्क करेंगे, जो कुछ भी रहेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। या वही टास्क आगे अनदर, लाइक एक ब्रिज हमने कंप्लीट किया, हमें लगता है हम इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाए, हमने अच्छे से मैनेज किया, तो वी विल अप्लाई फॉर अनदर कंस्ट्रक्शन साइट्स। क्या प्रॉब्लम है? राइट, हम टेंडर वगैरह अप्लाई करेंगे। In that case, on a completion of that task, on that adventure, there is right, automatically firm dissolve होती है, otherwise partners may decide to continue the firm, right, and that firm will be continued as partnership at will। ठीक है? So दोनों के केस में एक्चुअली सेम ही है, राइट? यहाँ पे लिखता हूँ ऑन completion of adventure, on completion of adventure, same, right? Firm automatically dissolve होगी, but if partners want to continue, they may continue the firm, but that firm will become partnership at will। ठीक है? So सर अब अपन पार्टनरशिप एट विल समझो। एट विल इट्स आपके इच्छा जैसे, आपको इट इज एज पर योर विश। इसका मतलब ऐसे पार्टनरशिप में देयर इज नो फिक्स पीरियड, देयर इज नो फिक्स पीरियड मतलब इट इज पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड नहीं है। देयर इज नो फिक्स टास्क मतलब एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी नहीं, इसमें ना ही फिक्स पीरियड है ना ही फिक्स टास्क है। ये पार्टनरशिप आपकी मर्जी, आपको कौन सा बिजनेस करना है, आपको डेली अलग अलग काम करने आप वैसे कर सकते हो, नई नई अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो, राइट? आपको जितने दिन चाहिए उतने दिन चला सकते हो। लाइक ये पार्टनरशिप ऐसे चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। एग्जैक्टली से यहाँ पे वो फ्रेज एकदम परफेक्ट है, चले तो शाम तक, सॉरी, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। मतलब अगर बहुत सक्सेसफुल होता है तो बहुत करेंगे, अदरवाइज हम बंद भी करेंगे। ना ही कोई फिक्स पीरियड है ना ही कोई फिक्स टास्क है। सच पार्टनरशिप आर कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट व्हील। व्हाई वी कॉल एट ए व्हील? बिकॉज राइट, हमें जो काम चाहिए हम वो कर सकते हैं। एंड अगर हमें पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है तो डिसॉल्व भी हम हमारे विल के हिसाब से कर सकते हैं। सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? सो पार्टनरशिप एट व्हील, राइट, इज ए पार्टनरशिप, right, where there is no fixed period, where there is no fixed adventure, it is carried as per will of the partners. Such partnership are called as partnership at will। एग्जाम्पल, अभी हमने मैंगो का सीजन में मैंगो सेल किए, फिर दिवाली का सीजन आएगा,
दिवाली में हम फटाके सेल करेंगे, क्रैकर्स, राखी का सीजन आएगा राखी सेल करेंगे, सब सीजन जैसे आएंगे हम करते रहेंगे। फिर क्रिसमस आएगा, क्रिसमस में हम वो जो भी लगता है वो सेल करेंगे, राइट। अलग इस नो फिक्स एडवेंचर एंड नो फिक्स पीरियड। ऐसे पार्टनरशिप्स को पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। समझ में आ रहा है? एंड नाउ क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना सर, मतलब ये पार्टनरशिप फिर डिसॉल्व होगी या नहीं होगी? Actually, it is very easy to dissolve such partnerships. Reason, dissolution is also as per their will. Means a partner, any partner can serve the notice in writing of his intention to dissolve the firm. मतलब, suppose, right? Suppose A, B, and C are the partners. They are carrying on a partnership under will, right? At a will, partnership at will. उनकी पार्टनरशिप एट विल है। नाउ अगर आप किसी को लगता है पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है, रीजन कैन बी एनीथिंग, क्यों डिसॉल्व करनी मैं उसके पीछे नहीं बात कर रहा हूं। अगर क्यों करनी है लॉ उसके बारे में बात नहीं करता। लॉ बोलता है अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी तो कैसे करनी वो बोलो। नाउ सपोज बी वांट्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, तो बी ने क्या करना है, ही हैज टू सर्व द नोटिस टू अदर पार्टनर्स इन राइटिंग, राइटिंग में होनी चाहिए नोटिस, ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। तो क्या करना है, बी ने ए एंड सी को नोटिस जारी करनी है, ही वांट्स टू डिसॉल्व द फर्म। वो नोटिस में he should mention the date of dissolution. एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज आज 22 अप्रैल को, राइट, बी को लगा कि नहीं मुझे क्या करना है, फर्म डिसॉल्व करनी है, तो वो उसने सपोज आज नोटिस सर्व की इन राइटिंग, दैट नोटिस हैज टू बी इन राइटिंग टू ए एंड सी, एंड उसने लिखा कि फ्रॉम राइट 30th अप्रैल विल बी द लास्ट डेट ऑफ द फर्म, मतलब 1st May onwards partnership will not be in existence. So उसने बोला with effect from 30th April और with effect from 1st of May partnership stands to dissolve. So उसने जो आज नोटिस दी है उस नोटिस में उसने डेट ऑफ डिसोल्यूशन मेंशन किया है, एंड इन दैट केस it will be stand dissolved from that date. 1st of May से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। सर बाकी पार्टनर्स ने एक्सेप्ट करना नहीं करना है, नो नेसेसरी, वो उसकी जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप एट विल, राइट, कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर by giving notice to other partners in writing of his intention to dissolve the firm. And अगर उसने उस नोटिस में, राइट, कब नोटिस दी, आज नोटिस दी, 22 अप्रैल को नोटिस दी, एंड उसने लिखा कि 1st May से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, 30th अप्रैल विल बी द लास्ट वर्किंग डेट, 1st May से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। फ्रॉम दैट डेट सर ए अपोज कर रहा है, सी अपोज कर रहा है, नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार नोटिस दे दी, दैट नोटिस बी कैन नॉट विड्रॉ, बी कैन नॉट विड्रॉ, बी कैन, दैट नोटिस गेट कैंसल्ड ओनली इफ ए एंड सी कैन कन्विंस बी कि नहीं यार हम करेंगे वगैरह, एंड विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स ए एंड सी वो नोटिस कैंसिल हो जाएगी। बी कैन नॉट कैंसिल द नोटिस। समझ में आ रहा है? बी कैन नॉट कैंसिल द नोटिस, अदर पार्टनर्स के कंसेंट के बाद ही वो नोटिस कैंसिल हो सकती है। सो उसने 30th अप्रैल लास्ट डेट बोला, तो 1st May से डेट क्या हो जाएगी, अपनी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। सर इफ ही हैज नॉट मेंशन द डेट इन द नोटिस, उसने डेट नहीं लिखी है, डेट नहीं है, इन दैट केस द डेट ऑफ सर्विंग द नोटिस इज अ डेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब आज से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। या तो उसने अगर स्पेसिफिक डेट लिखी है, फ्रॉम दैट डेट फर्म इज डिसॉल्व, or if he has not mentioned any date, date of serving the notice, date of communicating the notice to the other partners is a date of dissolution. मतलब आज अगर मैं नोटिस देता हूं, बी ने आज नोटिस दे दी to remaining partners in writing कि he wants to dissolve the firm, he intends to dissolve the firm, and he has not mentioned the date. So what is the date of dissolution? 22nd April is date of dissolution. सर ऐसे हो सकता है क्या, ध्यान देना, अभी तक मैंने क्या बोला, इफ डेट इज मेंशन्ड द फर्म इज डिसॉल्व फ्रॉम दैट डेट,
if date is not mentioned, right, firm is dissolved from the date of communication of the notice. सर ऐसे हो सकता है कि नोटिस आज दे दी और उसने डेट पहली की दे दी, पास्ट डेट दे दी, मतलब उसने बोला कि फर्म स्टैंड्स डिसॉल्व फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, उसने आज नोटिस दे दी और नोटिस में लिखा फर्म स्टैंड्स टू डिसॉल्व फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. दैट इज नॉट पॉसिबल. he cannot mention the date which is a past date. मतलब या तो उसको 22 अप्रैल डेट देनी होगी या 22 अप्रैल के बाद की डेट वो दे सकता है, बट नॉट राइट द प्रीवियस डेट. सो 3 केसेस मैंने बोला. इफ स्पेसिफिक डेट इज मेंशन, दैट डेट हैज टू बी द प्रेजेंट डेट और फ्यूचर डेट. दैट डेट कैन नॉट बी पास्ट डेट. ठीक है. सो जो भी डेट मेंशन की होगी, इट मे बी टुडेज डेट और इट मे बी future some future date, whose date say firm stands to dissolve. And if date is not mentioned, the date of communication of the notice stands as a date of dissolution. और मैंने उसमें एक और चीज बोली, the person who gives the notice cannot withdraw the notice. That notice can be withdrawn. और अगर बाद में उसको लगता है यार नहीं, मैंने नहीं नोटिस देनी चाहिए थी, राइट नाउ, और सम बाकी पार्टनर्स उसको कन्विंस करते हैं कि नहीं हम फर्म कंटिन्यू करेंगे, तो ऑल पार्टनर्स पुट टुगेदर, सब पार्टनर्स ने बोल के वो फर्म डिसॉल्व होगी. एग्जांपल, अब हम ऐसे देख सकते हैं, ए बी सी डी एंड ई वर द पार्टनर्स. डी को लगा कि फर्म डिसॉल्व करना है, ठीक है. डी ने आज 22 अप्रैल को नोटिस इशू की इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ए बी सी ई, सबको नोटिस देनी है, सबको. सो आज उसने नोटिस दे दी एंड ही मेंशन्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक 30th अप्रैल इज द लास्ट डेट, मतलब फर्म विल स्टैंड डिसॉल्व फ्रॉम 1st of May. प्रीवियस डेट तो नहीं दे सकता. नाउ समहाउ ए बी एंड सी कन्विंस डी कि विड्रॉ करनी है, हम फर्म कंटिन्यू करेंगे, और डी को लगता है कि फर्म कंटिन्यू करनी है, बट ई डज नॉट एग्री. ई बोलता है नहीं नहीं, आई वांट टू कैंसिल, आई वांट टू डिसॉल्व द फर्म. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड इस केस में होगा क्या, राइट. आप बोलोगे सर मेजॉरिटी रेडी हो रही है, राइट, डी भी रेडी किया हमने, यहाँ पे लिखा है ऑल पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए टू विड्रॉ दैट नोटिस. आप बोलोगे सर ई का नहीं सुनना है, चलो ई का नहीं सुनते, बट कल जाके ई खुद नोटिस देगा कि he wants to resolve the firm, फिर आपको वही करना है, समझा. इसलिए in such a case the partner who has given the notice in writing of his intention to dissolve the firm cannot withdraw the notice, right. It can be done by all partners put together. All partners put together. D ने भी बाद में बोलना चाहिए कि yes I want to withdraw the notice. समझ में आ रहा है. So वो और डिटेल में डिसोल्यूशन में समझेंगे, right. So such partnerships, right, are called as partnership at will. No specific period, no specific adventure, right, can be carried at will, can be dissolved at will by giving notice in writing. Such partnerships are called as partnership at will. Clear है. So अब हम एक एक देखते हैं, right. क्या नेक्स्ट. सो जस्ट मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. देयर इज वन क्वेश्चन कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सर फिक्स पार्टनरशिप बिफोर ड्यू डेट डिसॉल्व हो सकती है क्या. देखो मैम, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के देयर आर मेनी वेज. in that last chapter we will understand basically partnership can be dissolved by the like without intervention of the court or with the intervention of the court. मतलब एक खुद पार्टनर्स खुद होके पार्टनरशिप डिसॉल्व कर सकते हैं या कोर्ट पे अप्लाई करके पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है. ऐसे दो वेज है. उसमें अगर किसी की इंसैनिटी हो जाती है, कोई एक्टिव पार्टनर इंसेन हो गया, he is not capable to like conduct the activities of the business, ऐसे केसेस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है. लेट इट बी एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप. सो इवन दिस फिक्स पीरियड पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बिफोर द पीरियड provided those conditions are met. That is the last chapter. एग्जाम्पल मैं बोलता हूं,
तीन पार्टनर है ABC एंड पार्टनरशिप इज फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम 5 years. And suppose third year में a partner become insolvent. If nothing is decided or if nothing is decided between the partners in deed, the partnership stands dissolved. So भले ही वो फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप है, बट ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है बाय डिफॉल्ट. और ऑन ए डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व होती है. इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स वेदर टू कैरी ऑन ए पार्टनरशिप और नॉट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो अगर इफ अदर पार्टनर्स डज नॉट वांट टू कैरी ऑन ए पार्टनरशिप, तो वो फिक्स पीरियड की भी क्यों ना वो डिसॉल्व हो गई मैम. इनसैनिटी के केस में मैं बोल रहा हूँ, राइट. या परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब एक पार्टनर जानबूझ के आपको परेशानी कर रहा है, तो ऐसे केसेस में यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट एंड इफ यू कैन कन्विंस कोर्ट दैट यू कैन नॉट कैरी ऑन ए बिजनेस एंड देयर इज नो अदर रेमेडी बट टू डिसॉल्व द फर्म, तो कोई भी टाइप की पार्टनरशिप रहने दो मैम, फिक्स पीरियड रहने दो या आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप रहने दो, कैन बी डिसॉल्व बिफोर अचीविंग दैट माइलस्टोन. राइट, अंडरस्टैंड. सो ऐसे नहीं कि फिक्स पीरियड है मतलब 5 साल उसको झेलते रहो. सो वो आपके लास्ट चैप्टर में आता है हाउ टू डिसॉल्व द फर्म. तो उसमें से मैंने बोला एग्जांपल दिया इंसॉल्वेंसी केस में, डेथ के केस में, ऐसे तो राइट. उसके केस में ऑन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है. सो देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन डिसॉल्व द फर्म. अच्छा, एग्जांपल एक था एक्टिव पार्टनर है एंड एक्टिव पार्टनर इनसेन हो गया, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया टू कैरी ऑन हिज बिजनेस, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो काम ही नहीं कर सकता. एंड रिमेनिंग पार्टनर्स वांट कि यार अब हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट एंड कोर्ट को रिक्वेस्ट करके इफ दे कैन कन्विंस कोर्ट के राइट दे शुड क्लोज डाउन द बिजनेस. ऐसे केसेस में बिजनेस क्या हो जाएगा, राइट, डिसॉल्व हो जाएगा. कोई वैसे देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. नेक्स्ट, दूसरा एक और क्वेश्चन है जो मैं अभी लेता हूं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर फर्म डिसॉल्व करने की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती है क्या, या डायरेक्टली डिसॉल्व कर सकते हैं विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज. देखो मैंने एक लीगल फॉर्मेलिटी बोला इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल कि यू हैव टू गिव नोटिस इन राइटिंग. अगर आप नोटिस इन राइटिंग नहीं देते हो तो दैट डज नॉट लीड टू डिसोल्यूशन. सो वो लीगल फॉर्मेलिटी आ गई. आपको क्या बोलेंगे, आपको नोटिस देनी पड़ेगी. दूसरी लीगल फॉर्मेलिटीज आप कोर्ट के थ्रू भी कर सकते हो इन एक्सेप्शनल केसेस. आप कंसिस्टेंटली लॉसेस बियर कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में पार्टनर्स में डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म. सो डीड में लिखा होगा वैसे हम डिसॉल्व करेंगे, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट विल हेल्प अस टू राइट डिसॉल्व द फर्म. सो वैसे कुछ नहीं है. सो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है ऑब्वियसली, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर. सेक्शन 40 to 43 टॉक्स अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. ठीक है, तो वहां पे हम एक्चुअली उसमें क्या फॉर्मेलिटीज होती है वो अलग लास्ट चैप्टर है, उसमें समझ में आएगा. ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस है, सो आई विल टेक दोस क्वेश्चंस फर्स्ट. अच्छा, यस मैडम आप बोलो पहले. हाँ सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में फर्क है ना, मतलब फॉर्म डिसॉल्व होती है और पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है. यस यस. हाँ तो बराबर. सर जब इंसेन हो जाता है कोई पार्टनर तो फॉर्म डिसॉल्व होगी कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी? फर्म डिसॉल्व होगी मैम. इंसेन होता है तो इट्स चॉइस. देखो कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ऐसे लिखा है, वर्डिंग क्या है, कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म. अच्छा. हाँ, तो इट इज डिस्क्रिशन एंड उसके लिए राइट एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना होता है. राइट टू अंडरस्टैंड. सो वही मैं बोल रहा हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इज एक्चुअली रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज ए ब्रेकडाउन ऑफ द फर्म. ऐसे ठीक है. सो डेथ होती है किसी पार्टनर की तो फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट वहां पे लिखा है राइट अगर पार्टनर्स चाहते हैं, फर्म्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स है अगर वो चाहते हैं पार्टनरशिप कंटिन्यू करना है, दे कैन कंटिन्यू. सो इन दैट केस सपोज वो बोलते हैं हमें कंटिन्यू करनी है फर्म, तो उसको जो डेथ हुई हम उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. बट अगर पार्टनर बोलते हैं नहीं नहीं हमें नहीं कंटिन्यू करना है, तो उसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म डिसॉल्व हो गए, ऐसे बोलेंगे. सो हमें वो देखना पड़ेगा मैम. वो लास्ट चैप्टर है, अगर मेरे पास अगर वो नोट्स अवेलेबल है, लेट मी चेक. मैं चाहे तो आपकी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ. ठीक है, बिकॉज आई कीप ऑन रीडिंग द नोट्स. वो बिकॉज लॉ के लिए कंटिन्यूस रीडिंग चाहिए. आई वो पता है, लेकिन स्टिल देखो यहाँ पे लिखा है
नाउ दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. ये आपके नोट्स में नहीं है, ये लास्ट चैप्टर के नोट्स है मेरे पास. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. मैं जस्ट एक्चुअली आई एम नॉट हियर टू डिस्कस दिस, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ. मैंने बोला सेक्शन 40 टू 43 देखो, मैंने आपको बोला था कि टॉक्स अबाउट द डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. मतलब ये पार्टनर डिसाइड करेंगे, ना कि कोर्ट. एंड दूसरा एक ऑप्शन है, गो टू द कोर्ट, कोर्ट विल डिसॉल्व द फर्म. डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट. सो क्या लिखा है, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. पार्टनर्स खुद होके डिसाइड करेंगे कि हमें पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है. कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आता है, राइट, देखो यहाँ पे लिखा होगा, राइट, जब सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए मैम, फिर क्या होगा. सपोज 10 पार्टनर है, 10 के 10 इंसॉल्वेंट हो गए मैम, या 10 के 10 लोगों की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो पार्टनरशिप अपने आप क्या हो गई. या 10 में से 9 लोग इंसॉल्वेंट हो गए, या 9 लोगों की डेथ हो गई मैम, क्या करोगे आप. कैन ए रिमेनिंग वन पार्टनर कैन कैरी ऑन ए पार्टनरशिप बिजनेस? नो. सो ऐसे केसेस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है. हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज, इसमें आता है ऑन कंप्लीशन ऑफ योर टेन्योर इन केस ऑफ पार्टनर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप. इसमें आता है कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर. चेक करो वही रहेगा. यस देखो, एक्सपायरी ऑफ द टर्म, राइट, कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर एडवेंचर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, एजुकेशन ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट. ये किस में आ गया, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. बट इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. मतलब अगर पार्टनर बोलते हैं हमें कंटिन्यू करना है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट. अब इसमें 2 महीने अभी थोड़े फार समझाए भी आपको. क्या बोला, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, राइट, एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर एडवेंचर. मतलब फर्स्ट इज टॉकिंग अबाउट यूर विच पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड. बी इज टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो वहां पे लिखा गया वो कंप्लीट होने पे, राइट, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. बट अगर पार्टनर्स को लगता है कि पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है, दे कैन कंटिन्यू एंड दे विल कंटिन्यू एज ए पार्टनरशिप एट विल. डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, बाय डिफॉल्ट फर्म डिसॉल्व होगी प्रोवाइडेड व्हाट इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स. ऐसे केसेस है, लाइक बाय नोटिस. ये नोटिस का कहां पे आ गया, देखो ये नोटिस जो है अभी मैंने डिस्कस किया. मैंने क्या बोला आपको, राइट, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, डिसोल्यूशन इज बाय सर्विंग द नोटिस. देखो वही लिखा होगा, मैं वही बोल रहा हूं, राइट. डिसोल्यूशन बाय नोटिस फॉर ए पार्टनरशिप एट विल, वही लिखा है उन्होंने, जो वहां पे वही चीज है. अच्छा, फिर कोर्ट के केस में कब आएगा, इंसैनिटी ऑफ ए पार्टनर, राइट, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टनर. हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि हमें डिसॉल्व करवा के दो, राइट. मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर, कोई पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, सो उसके वजह से फर्म का नाम खराब हो रहा है, एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू डिसॉल्व, राइट. परसिस्ट एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि किसी पे, अब एक्चुअली वो एग्जांपल्स में उसमें देने वाला था कि सपोज किसी पे कुछ हरेसमेंट की केस चल रही है या कुछ ऐसे हुआ है, उसके वजह से हमारा भी नाम खराब हो रहा है हमारे पार्टनर की वजह से, तो उस केस में हम डिसॉल्व की, हम कोर्ट के पास जाएंगे कि डिसॉल्व करवा के दो, राइट. एंड कोर्ट कंपल्सरी डिसॉल्व करेगा ऐसे नहीं है. कोर्ट विल चेक ऑल द एविडेंसेस, फैक्ट्स, एंड फिर वो डिसाइड करेंगे करनी है नहीं करनी है. परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, कोई जानबूझ के, राइट, हमें परेशान कर रहा है हमारा पार्टनर कि वो कंसिस्टेंटली एग्रीमेंट ब्रीच ही कर रहा है. ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट मतलब ही इज नॉट फॉलोइंग द एग्रीमेंट, रूल्स हमेशा ब्रेक कर रहा है. तो ऐसे केसेस में इसका मतलब उसका इंटेंशन नहीं है पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना. तो ऐसे केसेस में वी मे अप्रोच द कोर्ट एंड कोर्ट को अपील करेंगे कि हमें डिसॉल्व करवा के दो. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखो मैंने बोला था, याद है ना, कि ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर, राइट, इन द फर्म टू अनदर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर्स. अगर ऐसे कोई पार्टनर करता है तो वी में अप्रोच, अदर पार्टनर्स में अप्रोच टू द कोर्ट एंड मे प्लीड कि हमें फर्म डिसॉल्व करवा के दो. परसिस्टेंट लॉसेस है, देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप हमेशा लॉसेस में हो, सो देयर इज नो अदर वे बट टू कैरी ऑन ए बिजनेस इन लॉसेस. तो उससे बेटर फर्म बंद करो, तो हम कोर्ट में अप्लाई करेंगे. एंड इफ देयर आर सम जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ऐसे कोई ग्राउंड हो सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट अदर ग्राउंड हो सकते हैं, उस केस में हम डिसोल्यूशन के लिए जा सकते हैं. तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर कि जिसके अंडर हम क्या कर सकते हैं, हमारे फर्म्स को डिसॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो ये है, ये समझ में आना चाहिए कि यस ऑब्वियसली हर चीज जो आप अभी मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आगे आने वाले हैं. ठीक है, सो मैम आपका क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया इसमें.
तो तेरा क्या क्वेश्चन था? नहीं सर, हो गया, बस ऑल। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, अनम्यूट कर खुद को, मैं तब तक दूसरे को लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो एक और क्वेश्चन है जो मैं अभी एड्रेस करता हूँ। ओके सर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पर्टिकुलर एडवेंचर के अलावा हर वक्त पार्टनर्स क्या रिलेशन होता है? देख, पर्टिकुलर एडवेंचर मतलब दैट एडवेंचर अगर बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली दे आर इन्वॉल्व थ्रू आउट दैट एडवेंचर। उसके सिवा वो बाकी भी बिजनेस कर सकते हैं ना, खुद खुद के बिजनेस हो सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। यस, यू कैन बी ए पार्टनर इन अदर पार्टनरशिप्स एज वेल इफ पार्टनर्स अलाउ यू। ऐसे थोड़ी है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, सीए जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप यू आर ए पार्टनर इन मेनी फर्म्स, होता है ना। आप अलग अलग पार्टनरशिप में काम करते हो, अब अलग अलग लोगों के लिए काम करते हो, ऐसे थोड़ी है। सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब आपको खाली वही काम करना है, ऐसे नहीं। यू कैन कैरी आउट अदर, आप सोल प्रोप्राइटर बोल के काम कर सकते हो, आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो, राइट। आप दूसरे फर्म के साथ काम करते हो, बट ऑब्वियसली आप जहां पे पार्टनर हो वहां की आपको कंसेंट होनी चाहिए। एंड अगर आप सेकंड राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर सीखोगे तो उसमें भी एक ड्यूटी है कि जब ऐसे हम करते हैं तो हमें रिमेनिंग पार्टनर्स की कंसेंट लेनी चाहिए, तो वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन, लेट मी चेक। सर, इफ अदर पार्टनर्स को फंड कंटिन्यू करनी होगी एंड एक पार्टनर को डिसॉल्व करना होगा तो उस पार्टनर को उसका शेयर देके पार्टनरशिप कंटिन्यू हो सकती है क्या? अच्छा ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे केसेस में अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फर्म ऑब्वियसली डिसॉल्व हो जाएगी। एंड जिन पार्टनर्स को फर्म वो कंटिन्यू करनी है, दे शुड फॉर्म ए न्यू पार्टनरशिप एंड दे शुड कंटिन्यू द बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने बोला, देयर आर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में वो एडवेंचर कंप्लीट होने पे हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो पार्टनर्स की मर्जी करना नहीं करना, तब वो बोलेंगे, एक आधा पार्टनर बोलता है मुझे नहीं करना, ठीक है हम लोग करेंगे वो पार्टनरशिप कंटिन्यू। समझ में आ रहा है? किसी की डेथ हो गई है, किसी का इंसॉल्वेंसी हुई, ये बाकी पार्टनर्स की मर्जी है। बट पार्टनरशिप एट विल में अगर किसी पार्टनर बोलता है नहीं मुझे डिसॉल्व ही करनी है, तो वो फर्म तो डिसॉल्व होगी होगी। फिर बाकी पार्टनर्स कर सकते हैं ना वो पार्टनरशिप, नई पार्टनरशिप करके, कोई दिक्कत नहीं। उसकी उसको थोड़ी है, देयर इज नो रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड। अब नया बिजनेस करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड देयर आर सम लिमिटेशंस। वो सेकंड चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैन आई डू, जब मैं एक पार्टनरशिप से चला जाता हूं तो मैं उसी बिजनेस, सिमिलर बिजनेस कर सकता हूं नहीं कर सकता, उसका आंसर आपको लाइक ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स या राइट्स ऑफ पार्टनर्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो आगे, तो पार्टनरशिप एट विल का भी टेंशन रहता है ना, अगर किसी को लग गया कि यार डिसॉल्व करनी तो कर देगा ना, तो उसका रिस्क भी है ना। एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कितने पीरियड के लिए भी कर सकते हो। विथ सम गुड थिंग्स कम्स आल्सो बैड थिंग्स, ठीक है। सो अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आई विल टेक, राइट। हाँ बोल रहे हैं। हम्म, हाँ अन्वेश पूछ, अन्वेश। ठीक है, आई विल टेक हिज क्वेश्चन लेटर ऑन। सो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, ध्यान देना, ठीक है। क्या लिखा है, अब इन्होंने मॉड्यूल में उन्होंने 4 टाइप्स दिए, राइट, ध्यान देना। तो मैं एक्चुअली बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स, बट यहाँ पे 4 टाइप्स दिए मॉड्यूल में, तो मैंने वही यहाँ पे लिया है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन, राइट, विथ रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, हम क्या काम करने वाले उसके हिसाब से पार्टनरशिप्स के टाइप्स है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, क्या काम करने वाले हैं। सो विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन, it can be for a fixed period, right, it can be for fixed period or it can be at will, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड, अगर पीरियड फिक्स्ड है तो वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड हो गई, अगर पीरियड फिक्स नहीं है तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। या विथ रिस्पेक्ट टू एडवेंचर, अगर पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए कर रहे हो तो उसको बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर कोई पर्टिकुलर एडवेंचर नहीं है तो हम उसको जनरल पार्टनरशिप बोलेंगे। एक्चुअली देयर इज नो सेक्शन ऑफ द जनरल पार्टनरशिप, इन तीनों के सेक्शन है। पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। हाउएवर जनरल पार्टनरशिप लॉ में नहीं लिखा है, तो हमने उसको एक क्लासिफाई कर दिया कि जनरल पार्टनरशिप है। एज सच देयर इज नो लाइक सेक्शन फॉर दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, ध्यान देना।
क्या लिखा है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स टर्म, क्या लिखा है, इन दिस केस पार्टनरशिप इज एंटर्ड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने पार्टनरशिप की है. व्हेन द पीरियड इज ओवर इट कम्स टू एन एंड. द पार्टनर्स मे कंपल्सरी नहीं है, ये उनकी चॉइस है. पार्टनर्स में वर्डिंग shall may have different meaning. Partners may however continue to carry on, right, however continue to carry on business after the expiry of the fixed period. They may continue to carry on a business. In such a case the mutual rights and duties of the partner remain same as they were carrying before the expiry of the period. मतलब जैसे पहले उनका रिलेशन था, जैसे उनके राइट्स थे, जैसे उनके लाइबिलिटीज थे, ऑन सिमिलर बेसिस नए पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हो आप फिक्स पीरियड के बाद सेम रहेगा. हाँ, इफ दे वांट टू चेंज दे कैन चेंज. क्या बोला, ध्यान देना, पीरियड खत्म होने पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली. इफ पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू दे विल कंटिन्यू, राइट. इफ दे डोंट चेंज एनीथिंग द म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स विल रिमेन सेम. एक्सपायरी के पहले जो राइट्स थे, जो ड्यूटीज हुआ करते थे, वही रहेंगे. इफ दे वांट टू चेंज दे कैन चेंज. ऐसे नहीं कि वो चेंज नहीं कर सकते. यू कैन चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा है? देन लिखा है इन सच अ केस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, फिक्स पीरियड, एंड द पार्टनरशिप बिकम्स पार्टनरशिप एट विल. देन आगे देखना, पार्टनर लाइक मैं पहले पर्टिकुलर पार्टनरशिप लेता हूं. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या लिखा है, when person becomes a partner with another person or persons in a particular adventure or undertaking, right, such partnership is known as particular partnership. ऐसे पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सेक्शन 8 गवर्न्स द पर्टिकुलर. इसका सेक्शन 7 था किसका, फिक्स पीरियड का, और इसका है सेक्शन 8. आगे देन it comes to an end as soon as the adventure is completed. वही लिखा है, वहां पे टाइम खत्म होने पे, यहाँ पे एडवेंचर खत्म होने पे. और आगे के भी प्रोविजन सेम ही है. if it is continued after the completion of the adventure for which it was entered into, it becomes partnership at will and unke mutual rights will remain same. In such a case rights and liabilities of the partners in respect of, right, other adventures are will be same in respect of the original adventure or undertaking. Exactly same है. उसमें बोला था पार्टनरशिप वॉज फॉर फिक्स पीरियड, इसमें बोल रहे पार्टनरशिप वॉज फॉर फिक्स्ड और स्पेसिफिक एडवेंचर और अंडरटेकिंग. ठीक है. देन पार्टनरशिप एट विल, क्या लिखा है, ध्यान देना. ठीक है. where no provision is made by the contract between the partners for the duration of the partnership, for the duration of the partnership, there is no specific duration, right, or for it डिटर्मिनेशन. एक्चुअली टर्मिनेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन है. यहाँ पे स्पेलिंग एरर है. अगर आप लॉ देखोगे ना तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन है. फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्डिंग क्या है लॉ की. लॉ में लिखा है इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द डीड फॉर द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन पता नहीं है, और देयर इज नो प्रोविजन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, क्या काम करना है ये डिटरमाइन नहीं है, क्या एडवेंचर करना है डिटरमाइन नहीं है, पीरियड फिक्स नहीं है, एंड जो एडवेंचर करना है वो डिटरमाइंड नहीं है. मतलब इट इज नॉट फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, इट इज नॉट पर्टिकुलर पार्टनरशिप. इन दैट केस, राइट, such partnership is called as partnership at will. Such partnership is called as partnership at will. This is not termination, this is determination. चाहे तो बेयर एक्ट बोलता हूँ, ये स्पेलिंग एरर ही होगी बिकॉज मुझे बेयर एक्ट पता है. एक मिनट, चाहे तो मैं चेक करता हूँ, राइट, कंफर्म करता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से. एक सेकंड, कहाँ पे था वो, हाँ, सेक्शन, यस, क्या लिखा है, ध्यान देना. दिस इज बेयर एक्ट, where no provision is made by the contract between the partners for the duration of their partnership for the determination of their partnership. देखो डिटर्मिनेशन है, ठीक है, स्पेलिंग एरर हो सकती है, आई नो इट इज अ डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मींस किस लिए पार्टनरशिप बनाई ये नहीं पता है, कितने पीरियड के लिए बनाई वो नहीं लिखा है, एंड किस पर्पस के लिए बनाई वो भी नहीं लिखा है. इन दैट केस द पार्टनरशिप बिकम्स, राइट, विच पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल. आगे नेक्स्ट,
सो हम अपने इस पे आते हैं आगे. इट मे बी डिसॉल्व, यस ये मैंने बोला था, इट मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, राइट, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. नोटिस देके, और दैट नोटिस हैज टू बी इन राइटिंग. ओरल नोटिस नहीं चलेगी, राइटिंग में होनी चाहिए. टू ऑल अदर पार्टनर्स, सबको देनी है, राइट, ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म. और इंटेंशन शुड बी क्लियर कि मुझे डिसॉल्व करना है. एम्बिग्यूअस नहीं चलेगा, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, राइट. देन मतलब नोटिस क्लियर होनी चाहिए एकदम. व्हेन सच नोटिस इज गिवन, आई एम थिंकिंग ऑफ डिसॉल्विंग वगैरह ऐसे नहीं, राइट. उसमें स्पेसिफिक इंटेंशन होना चाहिए कि हमें डिसॉल्व करनी है. व्हेन सच नोटिस इज गिवन, द फर्म इज डिसॉल्व्ड एज फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस, राइट, as the date of dissolution, or if no date is mentioned, as from the date of communication of such notice. Section 43 देखो, मैं 40 to 43 पार्टनर्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट डिसॉल्व कर सकते थे, एंड सेक्शन 44 कोर्ट के थ्रू हम डिसॉल्व कर सकते थे. तो सेक्शन 43 वाज टॉकिंग अबाउट दिस, बाय नोटिस था वो, ठीक है. ए पार्टनर एट विल, राइट, कैन अनडाउटेडली नेम ए डेट as from which the firm stands to dissolve. वो उसको जो डेट चाहिए वो डेट वो मेंशन कर सकता है, उसको जो भी डेट चाहिए वो डेट मेंशन कर सकता है. However, but that date cannot lie before the date of serving the notice. क्या लिखा है उन्होंने? But that date can in no case be the prior date of the issue of notice. मतलब जब आज मैं इश्यू कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वो पास्ट डेट नहीं होनी चाहिए, राइट. बैक डेटेड नोटिस नहीं हो सकती. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आगे रिट्रोस्पेक्टिव नोटिस नहीं हो सकती फॉर द डिसोल्यूशन. द नोटिस शुड बी, राइट, शुड बी एन अनएम्बिगुअस इंटीमेशन. एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. इंटीमेशन ऑफ द फाइनल इंटेंशन टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, एंड शुड बी सर्व्ड ऑन ऑल अदर पार्टनर. सबको हमें वो देनी ही चाहिए. नोटिस वंस गिवन कैन नॉट बी विथड्रॉन अनलेस ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू इट. समझ में आ रहा है? सब पार्टनर्स ने अगर, राइट, सब ने वो क्या करना चाहिए कि हमें वो विड्रॉ करनी है. ऑब्वियसली जिसने नोटिस दे वो भी उसमें क्या होना चाहिए, वो खुद होके तो विड्रॉ कर सकता है क्या? नहीं. वंस नोटिस गिवन इज गिवन. सो जैसे हम बोलते हैं कि एक बार शब्द बाहर निकले तो वापस नहीं आते. ऑन सिमिलर बेसिस एक बार आपने इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल अगर आपने नोटिस सर्व की तो नोटिस कैन नॉट बी विड्रॉन बाय यू, दैट कैन बी विड्रॉन विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. समझ में आ रहा है? सो दिस वाज अबाउट पार्टनरशिप एट विल. तो अभी हमने तीन देखे, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ठीक है, आगे क्या लिखा है? जनरल पार्टनरशिप. एक्चुअली लॉ में ऐसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने किया है, राइट. जनरल पार्टनरशिप, when a partnership is constituted with respect to business in general, business in general, ठीक है, it is called as general partnership. A general partnership is different from the particular partnership. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में स्पेसिफिक एडवेंचर, स्पेसिफिक अंडरटेकिंग होती है. जनरल पार्टनरशिप में एनी अंडरटेकिंग आप कर सकते हो. इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर एक्सटेंड्स ओनली टू दैट पर्टिकुलर एडवेंचर अंडरटेकिंग. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, राइट, जो पार्टनर्स का ऑब्लिगेशन है, जो लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल जो नेचर है लायबिलिटी का उनका, दैट एक्सटेंड ओनली दैट पर्टिकुलर activity. But in case of general partnership, it extend to each and every undertaking conducted by the firm. But not so in case of general partnership. So ये समझ में आना चाहिए. To be very frank, there is no such classification under the Bear Act. ठीक है. So there were 4 types of the what, right? आप चाहिए तो 4 types of partnership है, ऐसे बोल सकते हो. ठीक है. Before I move to a new point, types of partners, because types of partner थोड़े लेंदी है, राइट, तो वो मैं कल के लेक्चर में लूंगा. मैं एक छोटा पॉइंट कवर करता हूँ 5-1 मिनट में. ठीक है, ध्यान देना. यस, दिस इज, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया, मैं खाली समझा रहा हूं, ध्यान देना. Persons who enter into partnership with one another are individually called as partners and collectively they are called as firm. And the name under which they carry on a business is called as firm name. ठीक है? The firm name is only a short way of expressing the names of the partner.
फर्म नेम ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स नॉट ए सेपरेट एंटिटी, जस्ट राइट हम मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ऐसे हर बार बोलने से डायरेक्टली बोल सकते हैं द फर्म, ठीक है। देन the partners of a firm may carry on a business under any name and style which they please to adopt. उनको जो नाम रखना है फर्म का वो रख सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि उनके एब्रिविएशन ही उनके नाम का, दे कैन कीप लाइक एकतम एकेडमी राइट इज इन पार्टनरशिप। सो इसमें हम कोई हमारे जो पार्टनर्स है उनके नाम नहीं है, हमें जो अच्छा नाम लगा हमने वो सिलेक्ट किया, उसके अंडर हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आई सिंपली मीन इफ पार्टनर्स में चूज एनी नेम right, and under that name they can carry on the business, however there are some restrictions on the name, क्या ध्यान देना, but हमें जो चाहिए वो नाम हम यूज कर सकते हैं, however there are two restrictions, first or two limitations, I cannot use name right which contains, और मैं कोई शब्द यूज नहीं कर सकता when I keep the name of the firm, like a firm name shall not contain any of the following words, namely right, crown, imperial, impress, empire, imperial, king, queen, royal, ये क्यों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा लॉ कब का था एक्चुअली पार्टनरशिप 1872, उसके पहले इंग्लिश कॉमन लॉ गवर्न करते थे सब कॉन्ट्रैक्ट्स को, पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये एक्चुअली देखा जाए ना ये अंग्रेजों का जमाने का है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइट ये क्वीन वगैरह किंग वगैरह होते थे, तो अगर हमें पार्टनरशिप करनी है तो उन्होंने हमें एक्सप्रेसली बोला था कि वी कैन नॉट यूज सच वर्ड्स इन हमारे नेम ऑफ द पार्टनरशिप बिकॉज इट मे मिसलीड द पीपल, टू अवॉइड दैट, और ऐसे एनी वर्ड विच शोज पैट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट, विच शोज योर कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, राइट, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों में होनी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला है कि ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, राइट, or words expressing or implying the sanction, approval और patronage of the government। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जियो की एक एड आई थी, कितने लोगों ने देखी, बहुत पहले जब जियो लॉन्च हुआ था, एक न्यूज़पेपर में एड आई थी और उस न्यूज़पेपर के एड पे इवन नरेंद्र मोदी का फोटो था, राइट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो तब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका फोटो आया था, उस पर बहुत लोगों ने बाद में क्रिटिसाइज किया कि रिलायंस इज यूजिंग द नेम ऑफ मोदी जी राइट इन देयर एडवर्टाइजिंग। सो एक्चुअली वो जो फोटो है, उनकी जो इमेज आई है, इनडायरेक्टली वो लोगों में लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, या लोग इवन गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं कोई लोग। सो सिंपली ऐसे होना नहीं चाहिए, इसलिए राइट लॉ में लिखा है कि वी कैन नॉट यूज सम वर्ड्स, हमें जो नाम अच्छा लगता है वो रख सकते हैं, but there are two limitations. One, we cannot use such words or any word which shows the patronage of the government, sanction of the government or approval of the government. ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कर सकता है हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। However, the state government may signify its consent to use such words by the firm as part of its name by order in writing। अगर हमें ऐसे वर्ड्स यूज करना है, मैं एग्जांपल देता हूँ, रिपब्लिक टीवी जब आया था तब उसके नाम पे भी बहुत क्या हुआ था, बवाल मचा था, क्या लिखा है ध्यान देना, राइट। और दूसरा है इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द नेम्स एंड एम्ब्लेम्स एक्ट 1950, ये एक्ट है। सो व्हेनेवर वी रजिस्टर द फर्म, हमें वो नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स को देना होता है, एंड देन ही अप्रूव्स कि ये नाम हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। सो we have to use names and emblems act 1950। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने इंडियन फ्लैग उसके हेलमेट पे लगाया था, ये आपको कितने लोगों ने पढ़ा है या सुना है, आई डोंट नो। जब उसने यूज वो लगाया था तो बिफोर दैट ही हैड टू टेक द परमिशन, जिसकी भी परमिशन मे बी बीसीसीआई या कोई कंसर्न अथॉरिटी, उनकी परमिशन लेनी पड़ी थी, बिकॉज यूजिंग दैट फ्लैग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका यूज ठीक से होना चाहिए। तो जो राइट गवर्नमेंट जनरली परमिशन नहीं देती, एक्सेप्शनल केस में देती है सपोज। सो आई सिंपली मीन, तो एक एग्जांपल दिया मैंने, आई कैन नॉट यूज द फ्लैग एट एनी, मैं किधर भी नहीं यूज कर सकता फ्लैग, राइट, like some words, try to understand, I have to take the permission of the government in such case, so that comes under names and emblems act 1950। देखो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ है, राइट। सो हमें उस एक्ट के अंडर
परमिशन या जो भी उन्होंने वर्ड्स अलाउ किए या जो भी उन्होंने वर्ड्स को प्रोहिबिट किया है हम वो यूज नहीं कर सकते, जो उसके सिवा वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर वी डिसाइड द फर्म नेम, हमें जो चाहिए हम नेम ले सकते हैं प्रोवाइडेड दीज थिंग्स. दूसरा क्या लिखा है, राइट, द लॉ सेफगार्ड्स द ट्रेड नेम्स एंड द गुडविल ऑफ अदर पर्संस हु आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. तो क्या होता है कि ऑलरेडी किसी नाम से फर्म चल रही है, तो कैन आई यूज दैट. जनरली गवर्नमेंट ट्राइज और लॉ ट्राइज टू प्रोटेक्ट देयर नेम. Does not mean कि I cannot use that. I can still use. However, I should use it in a good faith and not to cheat. Fraudulent intention नहीं होना चाहिए. Try to understand. I can use the name. अगर मुझे firm करनी है, try to understand. मैं firm की बात कर रहा हूँ. I can use the existing name. Obviously मुझे उसकी परमिशन लेनी होगी. जब मैं फर्म रजिस्टर करता हूँ, जब मैं नाम रखता हूँ, तो वो अप्रूव भी होना चाहिए. Try to understand. And in that case, right, अगर कुछ मिसलीडिंग है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है कि उसके थ्रू जाओगे आप, राइट. आई सिंपली मीन आई कैन कीप द नेम ऑफ ए एग्जिस्टिंग फर्म, हाउएवर देयर शुड बी नो इंटेंशन टू मिसलीड द पीपल और देयर इज नो इंटेंशन ऑफ एनी फ्रॉड. फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से मैं कोई एग्जिस्टिंग नाम यूज नहीं कर सकता. सो क्या लिखा है, ध्यान देना. द लॉ सेफगार्ड्स द ट्रेड नेम एंड द गुडविल ऑफ द अदर पर्संस who are already in existence. The mere fact that firm has already been doing the business under certain name does not prevent a new firm from adopting it. Just कोई उस नाम से दूसरा बिजनेस कर रहा है, इसलिए नई फर्म वो ये नाम यूज नहीं कर सकती, ऐसे नहीं है. They can use it. आगे क्या लिखा है, but if name is used with fraudulent intention, the law will intervene. अगर आप वो नाम यूज कर रहे हो with fraudulent intention and वो प्रूव होता है, तो in that case court will intervene, right. Then the firm may be restrained from the adoption of such name by the injunction. Injunction means by the order of the court, right. So injunction means by the court order, simple word में, और law order, ठीक है. So through order, right, हम वो यूज करना हमें बंद करना पड़ेगा. सो सिंपल है, इस पे ज्यादा कुछ नहीं है. इतना टेक्निकली को आप फिर मुझे पूछोगे सर हम रिलायंस का नाम यूज करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो ट्रेडमार्क्स वगैरह उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट अलग है, राइट. उसके प्रोविजन देखने पड़ेंगे, राइट. उस पे खाली इतना समझ लेना कि हम फर्म का नाम कुछ भी रख सकते हैं विद सम एक्सेप्शंस. लाइक आई कैन नॉट यूज सम नेम्स लाइक क्राउन, एम्पेयर वगैरह, ये सब नेम, or all those names which shows the support, patronage and consent of the government. And second, I should consider into Names and Emblems Act 1950. I can use even a written name which is used by existing firm, but there should be no fraudulent intention. That's it. If there is a fraudulent intention, court will intervene and will, by their order, will stop you from using that name. You are supposed to then change the name. ठीक है. Then next point is partnership and the firm. Try to understand. Partnership is partnership is merely an abstract means intangible legal relation between the partners. It's a legal relation between the partners. It is, in other words, an abstract thing. Partnership, right, is an abstract relation. Relation is abstract. A firm is a collective name of all the partners. Firm is a collective name of all the partners. It is a concrete thing. Then partnership may be styled as invisible tie binding the partners together. That relation is invisible. Try to understand. That tie is invisible. The firm is a visible body. जो relation है वो invisible है, but जब firm की बात कर रहा हूँ, that वो हमें दिखता है, right? So it is a visible body, a collective group of those partners who are thus bound together. लीगल स्टेटस क्या है फर्म का, मैं इतना आप वो पढ़ लेना. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दिस. बट इन इंडिया क्या लिखा है उन्होंने, बट इन इंग्लैंड एंड इंडिया, राइट, फर्म्स डू नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पर्संस फॉर्मिंग इट. ठीक है. सो इट इज नॉट ए लीगल एंटिटी. फर्म इज नॉट ए लीगल एंटिटी. इट इज, राइट, इट्स नेम इज merely a abbreviated or abridged name of the all partners. The rights and obligations of the firm are actually the rights and obligations of the partners who
कंपोज द फर्म. जब मैं बोलता हूँ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, मतलब एक्चुअली किसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है? पार्टनर्स के ऑब्लिगेशन है. एंड द लास्ट पॉइंट राइट इज, ऐसे हो सकता है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, मैं और मेरे साथ 4 लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं और उसके लिए हमारे डीड वगैरह सब है, हम एक बिजनेस कर रहे हैं अंडर पार्टनरशिप, एंड हम 5 लोग और एक पार्टनरशिप साथ में कर सकते हैं क्या? द सेम पार्टनर्स कैन फॉर्म ए अनदर पार्टनरशिप. अगर हम 5 लोग जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप के अंडर बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम एक और पार्टनरशिप के अंडर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो विल दोस कंसिडर द 2 डिफरेंट फर्म्स और ए सिंगल फर्म? इट इज द क्वेश्चन. एग्जाम्पल की बात करता हूं, जहां पे मैंने मेरी आर्टिकलशिप की थी राइट, वहां पे एक्चुअली 2 फर्म्स थे. वही जो फर्स्ट फर्म में पार्टनर्स थे वही पार्टनर्स सेकंड फर्म में भी थे. तो अब इनको हम 2 अलग पार्टनरशिप बोलेंगे या एक ही पार्टनरशिप बोलेंगे? बिकॉज पार्टनर्स आर सेम पार्टनर्स आर एक्चुअली दे हैव फॉर्म्ड 2 पार्टनरशिप्स. तो आर दे just an extension of the existing partnership or it is a totally different partnership is a question. अब ध्यान देना क्या लिखा है उन्होंने. An agreement between the partners of a firm to carry on business and share its profit may be followed by, मतलब ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है एंड एक एडिशनल एग्रीमेंट आ रहा है, may be followed by separate agreement between the same partners. सेम पार्टनर्स वही लोग हैं. हाँ, कुछ नए पार्टनर्स आते हैं तो क्लियरली समझ में आता है ये अलग है और ये अलग है. वही लोग, वही 5 लोग नया पार्टनरशिप, नया एग्रीमेंट कर रहे हैं. जो फर्म ए में है वही अब फर्म बी में भी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वही लोग, चेंज नहीं हुआ है. उनमें से सब लोग, कुछ नहीं है ऐसे नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सब लोग जो 5 पार्टनर्स है वही पार्टनर्स नया एग्रीमेंट कर रहे हैं राइट. A separate agreement between the same partners to carry on another business and share the profits therein. मैंने बोला जो existing partners है, जो existing firm है, वही सब पार्टनर्स एक another agreement करते to do another business and to share profits from that. What is the question? Are they doing a separate partnership or it is just an extension of the same partnership? क्या लिखा है? It will depend on the intention of the partners. ये उनके intention पे depend करेगा. Whether they intend to constitute 2 separate partnership and therefore 2 distinct firms or extend merely a partnership originally constituted to carry on one business to carry on another business. तो हमें उनका क्या देखना होगा? Real intention देखना होगा. What they actually want. Whether they want to have 2 separate firms or they just want to extend the existing partnership. Right? आगे क्या लिखा है? How to identify that intention. The intention of the partners will have to be decided with reference to the terms of the agreement and all the surrounding circumstances, including evidences, right, as to the interlacing of management, finance, other incidents of the respective businesses. तो अब कोई बोल सकता है ये एक ही पार्टनरशिप है दोनों, या कोई बोल सकता है 2 अलग अलग पार्टनरशिप है. तो हम क्या देखेंगे? व्हाट इज द रियल इंटेंशन बिहाइंड दैट. आर दे वांट टू फॉर्म ए डिफरेंट पार्टनरशिप? अगर दैट इज इंटेंशन, दे आर 2 सेपरेट फर्म्स. नो, दे जस्ट वांट टू एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, इट इज सिंगल फर्म. बट ये जो रियल इंटेंशन है वो ढूंढने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल दोनों फर्म का मैनेजमेंट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बैंक अकाउंट सेम है राइट. खाली पेपर पे 2 पार्टनरशिप है बट बैंक अकाउंट सेम है, मैनेजमेंट वही है राइट, एम्प्लॉयज भी वही है, सब वही है. तो जनरली जस्ट राइट, उन्होंने 2 फर्म्स बनाई है बट इंटेंशन इज जस्ट टू एक्सटेंड. मैनेजमेंट अलग है, बैंक अकाउंट अलग है, ऑथोरिटीज भी अलग अलग है पार्टनर्स की. ऐसे दिख रहा है पार्टनर्स वही है बट हर एक की ऑथोरिटी अलग है, पीएसआर अलग अलग है. तो वी कैन से कि इंटेंशन इज कि इट इज टू हैव ए डिफरेंट पार्टनरशिप. समझ में आ रहा है? सो वी हैव टू गो फॉर द रियल इंटेंशन. सो व्हेन सेम पार्टनर्स form a different partnership or they sign a different agreement, right, whether it is a separate partnership or a same partnership depends on the real intention of those partners. इसमें क्वेश्चन ही नहीं है कि ये पार्टनरशिप है नहीं है, ये पार्टनरशिप ही है बट अब 2 है या 1 है ये ढूंढना है. समझ में आ रहा है? सो हमें वो देखना पड़ेगा राइट. सो
वी हैव टू बी मोर डिटेक्टिव काइंड ऑफ थिंग, हमें थोड़ी चीजों को ठीक से ऑब्जर्व करना होगा एंड देन वी हैव टू कंक्लूड कि वो क्या है। सर अकाउंटिंग अलग करनी पड़ेगी क्या, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर रहे हो, वही मैं बोल रहा हूँ। आर यू मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, आर यू गोना पे टैक्सेस सेपरेटली, और यू आर गोना जस्ट उसको एट द एंड ऑफ द ईयर कंसोलिडेट करने वाले हो दोनों का P&L। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल हमारा जो ब्रांचेस है, हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हम दोनों को साथ में लेके आते हैं, अकाउंटिंग मर्ज करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं एंड वी पे टैक्स। हमारा एक ही जीएसटी नंबर है दोनों ब्रांचेस पे, बैंक अकाउंट अलग अलग है बट जीएसटी एक ही है, राइट? हम टैक्स भी एक, तो ये दिखाता है कि जस्ट मेयरली एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप।